Hello student, today we learn Unit 1 Introduction to Irrigation and Hydrology and topic is 1.3. In previous lecture, we learned definition of hydrology and hydrological cycle. In this lecture, learning outcomes means after completion of this video lecture, the student will be able to explain the construction and function of rain gauge. Now rain gauge, rainfall. Rainfall is the depth in mm or centimeter of water that would stand on the surface of the earth if it is not lost in any manner like absorption or evaporation. बारिश क्या होती है? बारिश सेंटीमीटर या mm में मेजर करते हैं ऑफ वाटर दैट वुड बी स्टैंड ऑन अर्थ सरफेस. अर्थ सरफेस के ऊपर जो भी बारिश होती है वो सेंटीमीटर mm में मेजर करते हैं which cannot be lost in any manner. Absorption और evaporation जैसे lost इसमें इंक्लूड नहीं होते हैं तो उसको रेनफॉल कहते हैं. देन रेन गेज, द इंस्ट्रूमेंट विच मेजर्स रेनफॉल. रेनफॉल मेजर करने का जो इंस्ट्रूमेंट होता है, द इंस्ट्रूमेंट विच मेजर्स रेनफॉल एट ए प्लेस इज नोन एज रेन गेज. उसको रेन गेज कहते हैं. और रेन गेज जहाँ पे इंस्टॉल होता है उसको रेन गेज स्टेशन कहते हैं. द प्लेस एट विच रेन गेजेस आर फिक्स और इंस्टॉल फॉर मेजरमेंट ऑफ रेनफॉल इज कॉल्ड रेन गेज स्टेशन. नाउ टाइप्स ऑफ रेन गेजेस. रेन गेजेस आर क्लासिफाइड इन टू कैटेगरीज. फर्स्ट इज द नॉन रिकॉर्डिंग और नॉन ऑटोमेटिक. फॉर एग्जाम्पल सीमंस रेन गेज. Second one is the automatic or self recording are the weighing bucket rain gauge, tipping bucket rain gauge and floating type or siphon rain gauge. Now recording type siphon rain gauge. Observe this image having top diameter 12.5 centimeter. This is the receiving funnel and water is accumulated at in a glass bottle having 7.5 to 10 centimeter diameter and whole assembly is installed on a 60 centimeter by 60 centimeter by 60 centimeter masonry foundation block or concrete block and is provided or installed above the 30 centimeter ground surface, and accumulation of water in this bottle can be measured with the measuring cylinder. Okay, so the standard rain gauge known as Siemens rain gauge recommended and installed by Indian Meteorological Department, जिसको मौसम विभाग कहते हैं. This is vertical cylindrical contain with top opening 125 centimeter diameter. टॉप का डायमीटर 125 सेंटीमीटर रहता है. A funnel shape hood is inserted to minimize evaporation losses. The water is funneled into inner cylinder. Now recording type weighing bucket. इसको weighing bucket क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें water का weight करते हैं. Now observe this image carefully. And this is a graph recorded by the weighing bucket. Now the working of weighing bucket. This gauge weigh the rain means इसमें weight होता है rain का जो भी रिसीव होता है, which falls into a bucket, जो bucket में जमा होता है उसका weight होता है on a platform of a spring level. उसके बाद में the increasing weight of bucket and it counts the record on the chart held by clock driven drum. जैसे जैसे बकेट का वेट बढ़ता है तो उसका रिकॉर्डिंग क्लॉक ड्रिवन ड्रम पे होता है. उसके बाद में द रिकॉर्ड शोज द एक्यूमुलेशन ऑफ प्रेसिपिटेशन. इसमें जो ग्राफ शो होता है उसमें क्या होता है? एक्यूमुलेशन ऑफ प्रेसिपिटेशन. जो भी बारिश होती है उसमें जो जमा होती है उसका वो मास स्क्वायर होता है, उसको बोलते हैं मास स्क्वायर ऑफ प्रेसिपिटेशन. ओके, देन
The gauge must be service about once a week. इस टाइप का गेज जो होता है वो हफ्ते में एक दिन सर्विसिंग होता है। सर्विसिंग में क्या होता है, जो भी क्लॉक मैकेनिज्म उसमें फिक्स होता है उसको चाबी वगैरह देके फुल किया जाता है ताकि वो 8 दिन चल सके, और जो भी चार्ट उसके ऊपर बाउंड रहता है उसको रिप्लेस करते हैं। जब भी हाई रेनफॉल होता है, द रिकॉर्डिंग मैकेनिज्म रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ record immediately on reaching the upper edge of the recording chart। जैसे वो हाई पीक लेवल पे जाने के बाद में और वो रिवर्स डायरेक्शन में जाता है। इज द वेइंग बकेट रेन गेज। देन टिपिंग बकेट, इसको टिपिंग बकेट क्यों कहते हैं, तो सी द केयरफुली दिस इमेज, दिस इज द रिसीविंग जार, दिस इज द फनेल। ये फनेल से जब भी यहाँ पे बारिश का पानी एक बकेट में जमा होता है, छोटी सी बकेट रहती है उसको टिपिंग बकेट कहते हैं, और ये टिपिंग बकेट पे उसको टिप होना है यानी गिरना, उस इसलिए इसको टिपिंग बकेट, ये ड्रॉप ड्रॉप में टिप होता है इसलिए इसको टिपिंग बकेट कहते हैं। ये जो टिपिंग बकेट है, ये टिपिंग बकेट जस्ट वर्क लाइक एज ए बाइसिकल पाइडल। बाइसिकल पाइडल आपने देखा होगा, एक ऊपर रहता है एक नीचे रहता है, तो बाइसिकल पाइडल की जगह पे यहाँ पे टिपिंग बकेट रहता है, जस्ट लाइक एज ए स्पून। और एक टिपिंग बकेट का जो वॉल्यूम रहता है वो 0.25 mm रहता है। और इस टाइप से जैसे साइकिल का पाइडल वर्क करता है वैसे ही एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे, जैसे वो भर जाता है नीचे आ जाता है और यहाँ पे वो खाली हो जाता है और खाली वाला ऊपर चले जाता है। तो इस टाइप से वो टिपिंग बकेट वर्क करते हैं। द टिपिंग बकेट रेन गेज कंसिस्ट ऑफ 30 सेंटीमीटर डायमीटर शार्प एज रिसीवर। At the end of receiver, a funnel is provided. A pair of buckets are provided under the funnel in such a way that when one bucket receives 0.25 mm of rainfall, it tips, discharging its contents into a tank, bringing the other bucket under the funnel। जैसे यहाँ पे ये खाली हो जाती है तो दूसरी ऊपर चले जाती है। ओके, तो टिपिंग ऑफ बकेट कंप्लीट्स एंड इलेक्ट्रिक सर्किट। इस टाइप से एक खाली एक ऊपर इस टाइप से घूमते रहते हैं, उसकी वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक सर्किट पैदा होता है। और इलेक्ट्रिक सर्किट पैदा होने के बाद में जो रिवॉल्विंग ड्रम है, जो रिवॉल्विंग ड्रम का पेन है वो ऑपरेट होता है और चार्ट ड्रॉ करना चालू कर देता है। तो इस टाइप से ये टिपिंग बकेट वर्क करता है। उसके बाद में साइफन गेज और फ्लोट टाइप। इसको फ्लोट टाइप क्यों बोला है या साइफन गेज क्यों बोला है, क्योंकि इसमें साइफनिक एक्शन वर्क करता है टू ड्रेन द वाटर, इसलिए इसको साइफन गेज बोलते हैं। और फ्लोटिंग गेज क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें एक फ्लोट होता है विच इज लाइट इन वेट, सो इसको फ्लोटिंग टाइप भी बोलते हैं। सो दिस इज वेरी सिंपल मैकेनिज्म। The top receiver is 0 to 3 centimeter. This is a funnel. Funnel is inserted in filter, and filter is from filter a water is accumulated in a floating chamber। ओके, यहाँ पे पानी जमा होता है और पानी के कारण ये जो फ्लोट ये लाइट वेट होता है, बिल्कुल हल्का होता है, और उसके वजह से ये ऊपर जाता है। जैसे ऊपर चले जाएगा ये पेन जो है ये वर्क करना चालू कर देगा। ये वर्क करने चालू करने के बाद में यहाँ पे उसका रिकॉर्डिंग चालू होता है और ये ड्रम घूमते रहता है। ओके, ये कंप्लीट चेम्बर भरने के बाद में ये साइफनिक एक्शन वर्क करता है और ये यहाँ का पूरा पानी खाली हो जाता है। तो इन दिस वे द साइफन गेज वर्क। इन द साइफन गेज also known as float type of recording rain gauge, the rain gauge is fed into a float chamber containing a light hollow float. The vertical moment of the float, as the level of water rises, the transmitted by a suitable mechanism into the moment of the pen on a revolving chart।
By suitable adjustment of dimension of the receiving funnel, float and float chamber, any desired scale value on the chart can be obtained. Siphoning arrangement is provided for emptying the float chamber quickly whenever it becomes full. The pen returns to the bottom of the chart. मतलब ये साइफनिक एक्शन होने के बाद में, खाली होने के बाद में फ्लोट और नीचे आ जाता है, उसके वजह से ये पेन भी नीचे आ जाता है. तो इस तरीके से ये साइफन फ्लोट वर्क करता है. ओके, सो ऑल द रिकॉर्डिंग टाइप रेन गेजेस आर यूज इन हिली एरिया, जहां पर वर्क करने के लिए अगर कोई मैन पावर पहुंच नहीं सकता, ऐसे जगह पे रिकॉर्डिंग टाइप और सेल्फ रिकॉर्डिंग टाइप रेन गेजेस यूज होते हैं. लेकिन अपनी सिटी में नॉन रिकॉर्डिंग टाइप मींस सीमंस रेन गेज यूज करते हैं. ओके, देन summary of this lecture. In this lecture we learn the rainfall, rain gauge station, also type of rain gauges, non recording and recording type, construction and function of Siemens rain gauge, construction and function of weighing rain gauge, construction and function of tipping bucket rain gauge, and construction and function of siphon or float type rain gauge. Okay, thank you.